آداب دوستو، میں ہوں ابن واجد. آپ دیکھ رہے ہیں PSR ایپل ٹی وی. آج ہم نے حکومت کی جانب سے ترتیب دیے گئے پروگرام مردم شماری پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکالرس اور ڈاکٹرس اور شہر کی معزز شخصیات بھی ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں. تو دوستو، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سروے شروع ہوا ہے یہ تمام ذاتوں سے تعلق رکھنے والے، تمام فرقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے ہے، نہ کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے. دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پر مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ اس سروے میں حصہ لیں، لیکن ایسا کچھ ہے ہی نہیں. یہ سروے سب کے لیے، تمام ذاتوں اور تمام طبقات سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ سروے اہم ہے. تو یہاں میں بات کروں گا اس مردم شماری کی یا پھر گھر سروے کی. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہوں گا کہ یہاں اسکالرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں اور شہر کی معروف شخصیات بھی ہیں. اب معروف شخصیات میں شمار ہوتا ہے ایپل ٹی وی کے PSR ایپل ٹی وی کے ڈائریکٹر پرفار صاحب کا. تو میں اب بات کرنے جا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، آپ اپنا تعارف دیجیے، اس کے بعد آپ یہ بتائیے کہ مسلمانوں کو اس سروے میں کس طرح اپنا آرا کو ظاہر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں PSR ایپل ٹی وی کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اس نازک موقع پر ایک بہترین پروگرام کا آغاز کیا ہے. اور واجد بھائی، آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا ہے. دیکھیے، یہ سروے جو کیا جا رہا ہے یہ نیا نہیں ہے، لیکن منفرد اس لیے ہے کیونکہ یہ ذات پات پر ہونے والا پہلا سروے ہے. تو یہ جو ہے ایک منظم انداز سے جو ہے سماجی معاشی سطح پر اس سروے کا ہونا ضروری ہے. جی بالکل، شکریہ. آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیے، مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں، جیسے کہ نطاف ہے اور میتھر ہے، دھوبی ہے. تو ان طبقات کو کس طرح اس سروے سے فائدہ اٹھانا چاہیے؟ دیکھیے، ایک بات تو عیاں ہے سب کے سامنے کہ جو پسماندہ طبقات ہوتے ہیں ان کو آگے لانے کے لیے، قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے اس سروے کا آغاز کیا گیا ہے. تو ایسے میں ان طبقات کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو خط غربت کے نیچے جی رہے ہیں؟ جی، سب سے پہلے میں میرا تعارف کروں گا کہ میں محمد خالد سوشل ایکٹیوسٹ ہوں اور سوشیولوجی کا گریجویٹ ہوں، پوسٹ گریجویٹ، اور اسلامک اسٹڈیز کا. سو آئی ووڈ لائک ٹو تھینکس ٹو کنڈکٹ دس پروگرام ٹو PSR ڈائریکٹر سر پرشاد جی. اور سب سے زیادہ ممنون اور مشکور ہوں واجد صاحب کا، جو اس اہم موقع پر جو ہے سو یہ کنڈکٹ کیے ہیں پروگرام کے ذات پات کے سروے پر. کہ واجد بھائی، سب سے پہلے یہ بات یہ ہے کہ یہ سروے جو ہے پاپولیشن سروے نہیں ہے، جو ہر 10 سال کو پاپولیشن سینسس ہوتا ہے. یہ سروے ایک ذات پات پر مبنی ہے. تو اس سے پہلے بھی جو YS راشٹر ریڈی صاحب کی گورنمنٹ میں یہ سروے ہو چکا ہے. خاص کر مسلمانوں کی جب بات کروں گا، سروے تو سارے گورنمنٹ تلنگانہ پاپولیشن کے لیے سینٹرل گورنمنٹ کا سروے نہیں ہے، ایک اسٹیٹ گورنمنٹ کا سروے ہے، جس میں پورا ان کی ذات پات کا جو ہے سو ایک ڈاٹا لیا جائے گا. اور اس ڈاٹا میں جس طرح ہندو سماج میں BC SC ST آلریڈی جو سو اس کو مینشن ہے کانسٹیٹیوشنس کے دوارا. لیکن 2004 کے بعد YS راشٹر صاحب نے مسلمانوں پر جو ہے سو ایک سروے کنڈکٹ کیا تھا، جو 5% پورے مسلمانوں کو جو سو آپ سینکشن کیے تھے. تو اس میں مذہب کی بنا پر نہیں دیا جا سکتا بول کے BJP گورنمنٹ نے اس کو پھر کیس کیا. کیس کے بعد تو ہائی کورٹ یہ بولی کہ آپ جو کمیشن بٹھائیے BC کمیشن. تو YS راشٹر گورنمنٹ نے BC کمیشن بٹھا کر 4% مسلمانوں کو BCE کیٹیگری میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا. چلیے ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھتا یہ جا رہا تھا کہ مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں جو قانونی مراعات جن کے حق میں آتے ہیں اور جنہیں حکومت کی جانب سے دی گئی اسکیمات کا فائدہ ہو سکتا ہے، وہ کتنی ذاتیں ہیں؟ کتنی ذاتیں ہیں؟ تو اس میں BCB میں سروے کے بعد BCB میں جو سو BC کمیشن والوں نے ایک لداف ہے اور جو سو بنجاری ہے، دیویکلا ہے، اس لوگوں کو BCB میں شامل کیا حکومت. اور شاید شاہان دھوبی بھی، حجام بھی، یہ BCE میں آئیں گے. جی.
BC में इतने आएंगे कि अचतवलु मुस्लिम, धोबी मुस्लिम, मुस्लिम हज्जाम, मुस्लिम नवीद, धोबी मुस्लिम, मुसलमान धोबी, एक एक कास्ट के 3-3 4-4 प्रोसेसर के नाम के साथ जो है उसको आइडेंटिफाई किया है गवर्नमेंट ने। तो BC में जो है 14 फिरकों मुसलमानों के जो मेंशन किया हुआ है उसमें। डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि देखिए अब जबकि सर्वे शुरू हो चुका है, ऐसे हालात में लोग झूठ बोलते हैं। कोई पैसा वाला होता है, जैसा अभी मैंने आप जिक्र किया कि नदाफ है या हजाम है, जो भी है वो लोग पैसा है, उनके पास गाड़ी है, गैस सिलेंडर है, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो है उसके पास, लेकिन वो बताता ये है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी ज़ात के ताल्लुक़ से उन्हें भरपूर अंदाज से बताना चाहिए। शुमार पुनिंदे घर पर आते हैं, उन्हें खुलकर बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। सबसे पहले तो मैं IPL TV का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। मेरे साथ PSR IPL TV के डायरेक्टर साहब भी तशरीफ़ फरमा है, साथ मैं अजय साहब बड़ी ममनून हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त निकाल के इस प्रोग्राम का इंतखाब में बनाया। तो आपका सवाल ये है कि शुमार पुनिंदों को जो अपनी मालूमात है वो दुरुस्त अंदाज में देनी चाहिए कि नहीं। उमूमन आमतौर पे लोगों के दिलों में खदशात पाए जाते हैं कि ये अगर हम सही मालूमात फराहम करते हैं तो शायद हमारी जो बारात जिससे इस्तेफादा कर रहे हैं शायद कि वो हमें ना मिल पाए। लेकिन अब फी ज़माना कोई ऐसी चीज़ हुकूमत के नज़रों से ओझल नहीं है कि जिसको हम पोशीदा रख सके। ख़ास तौर पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट है उनको भी हमारे आधार से लिंक कर दिया गया, तो हमारे पास कितनी पूंजी आ रही और कितनी पूंजी जा रही उसका भी क्या है उनको अंदाज़ा है। इसी हिसाब से हमारी हर अब्बात और सन्नात पे हुकूमत की नज़र है। रोडों पे मुख्तलिफ़ मकामात पे कैमरे लगा दिए गए हैं। आप घर से निकल कर घर तक पहुँचने तक आप पे नज़र है। इसी के साथ साथ तमाम ज़िंदगी के जो उमूर है उस तरफ से भी हुकूमत को उसका इल्म है। महज हुकूमत जहाँ पे हुकूमत की नज़र नहीं पड़ी उस चीज़ को हुकूमत के सामने लाना है। जैसे कि आपकी माशी हालात है, कि आपकी जो तमाम जो चीज़ें हैं जैसे कि आधार से राय जो लोग सर्वे से पहले आपसे मालूमात हासिल करने आ रहे हैं उससे मुताबिक जो सवालात हैं 75-80 सवालात जो है उससे मुताबिक अहम जो है जैसे कि आधार कार्ड है, अपना बैंक पासबुक है और दिगर जो अहम जैसे कि आपके पास लाइट है, लाइट का मीटर है तो मीटर नंबर क्या है और आपकी बिल क्या आ रही है, नल है तो नल का है, आपका मकान आती है या किराए का मकान है। इस तरह की तमाम चीज़ों को क्या करना अपन तैयारी करके रहना। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे चैनल के डायरेक्टर जनाब प्रसाद साहब సాద్ గారు చెప్పండి, మీరు ఇప్పుడు మా దగ్గర తాడి తహసీల్దార్లు ఉంటారు, వాళ్ళకి గిట్టంగా ఈ స్కీమ్తో फ़ायदा वस्तुदी अंटे फ़ायदा मिलेगा उसे ताड़ी तहसीलदार। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सर्वे में कैसे आए आगे? Survey is a men's program. It is a very good program from the government. And then we just invest media level secretary to serve Pakaram. It really is a real good program, but how far it is going to be success and most important again. ఎందుకంటే చాలా మంది ఇంటికి వెళ్తున్నారు, చాలా కష్టాలు పడతాను ఎవరైతే ఈ టీచర్స్ ఉన్నారు, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలని ముఖ్య ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అది ఏ రకంగా చేయడం అనేది డాక్టర్ గారు వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఇట్స్ రియల్లీ गुड प्रोग्राम. मगर डायरेक्टर साहब एक बात ये है कि ये बात हम अब कर रहे हैं जबकि ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है, 6 तारीख से शुरू हो चुका है और ये चलेगा 30 तारीख तक। तो इन 20 दिनों में, आने वाले 20 दिनों में हुकूमत क्या कर पाएगी बताइए आप? पहले कहा गया 9 तारीख से इस पर तेज़ी लाई जाएगी, लेकिन कोई तेज़ी नहीं है। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि कहीं हुकूमत इसमें गफलत तो नहीं कर रही है? कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कहीं पर टीचर्स सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इसमें तेज़ी लाना चाहिए या नहीं? యాక్చువల్గా కొంచెం రూట్ లెవెల్గా తీసుకెళ్ళాలి. దాన్ని వీళ్ళకు ఎక్కువ ఎడ్యుకేట్ చేయాలి ఎంతవరకు బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రోగ్రామ్ అని. ఎందుకంటే ఫాల్స్ ఒపీనియన్ పబ్లిక్లో అది కాదు, మనం ఇచ్చే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో మనం కామ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అనుకోకూడదండి.
and he'll tell to the public. అయితే మీరు మా చూడేటోళ్ళకు చెప్పండి, ఇది ఎట్లా షౌర్ రావాలి వాళ్ళకు, ఎట్లా Yes, మీరు చెప్పే పాయింట్ ఎక్సలెంట్ పాయింట్ యాక్చువల్గా. కానీ ఏం చేస్తా అంటే పబ్లిక్ అంటే మనం చెప్పేది అంటే ప్లీజ్ కోఆపరేట్ ఆఫ్ ఆల్ ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ అది చేస్తే మన ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు కాదు కూడా, ఇట్ ఇస్ రియల్ యూస్ఫుల్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఇండివిజువల్. సో దయచేసి ఇది అర్థం చేసుకోండి. ఎందుకంటే 2-3 రోజులు వీడియోలో చాలా కథనాలు వస్తున్నాయండి. ఇది అంటే ఈ వీడియోని కథనాలు వచ్చేది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతా ఉంది. అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఆ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంకోటి రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అది ఇన్ఫర్మేషన్ తప్పు. వీఆర్ ప్లీజ్ కైండ్లీ కోఆపరేట్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్. ఇట్స్ ఎ గుడ్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్. This is very message to all the public. थैंक यू सर. तो अमूमन डॉक्टर साहब हमने अमूमन देखा है कि लोग डरते हैं इस प्रोग्राम में आने के लिए. जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि एक गलत तरीके से बिजनेस की तरक्की जा रही है. इस जाने के लिए जो दर्जे फहरिस्त तबकात हैं इनको कौमी धारे समाजी धारे में शामिल करने के लिए आप बताइए कि लोगों को कि किस तरह इसमें हिस्सा लें. वाजिद भाई देखिए, पहले तो जो मसाइल हैं उन मसाइल से तो पूरी मिल्लत आगाह है, पूरी कौम आगाह है. मसला ये है कि अब ऐसा सर्वे जो हो रहा है इसे घर घर पहुंचाने की ज़िम्मेदारी जो है तमाम समाजी जहदकारों की है और सहाफ़ियों की है. आप तो इसका हक़ अदा कर रहे हैं, लेकिन और भी ऐसे लोग हैं जो इसका हक़ अदा नहीं कर रहे हैं. उन्हें चाहिए कि बढ़ चढ़ कर जो है इसमें कौम के हर घर तक जो है इस बात को पहुंचाई जाए, बल्कि मुनज़्ज़म अंदाज से ये किया जाए कि जो सर्वे के 80,000 जो लोग हैं आपके जो खिदमत अंजाम जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन आने से पहले ही हम घर में उन सवालात के जवाबात को तैयार करके रखें ताकि वो लोगों को भी आसानी, और फिर जब वो आ जाए तो बहुत ही मुनज़्ज़म और सोच समझ कर पूरे चीज़ों को पढ़कर जांच कर अच्छे अंदाज से सवालात का जवाब दें. डरने की तो जो है इसमें मैं बोलता हूँ कि ख़तई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहला शफ़ाफ़ व शफ़ाफ़ काम है. मेन चीज़ जो है देखा जा रहा है कि बहुत ही अच्छा काम है. लेकिन अब यहाँ पे सियासी क़ायदीन की भी बड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि जब ये काम हो जाएगा उसके बाद इसको किस तरीके से हिकमत अमली जामा पहनाया जाएगा इस तरह, क्योंकि काम तो इससे पहले भी बहुत हुए हैं, लेकिन क्या इसको अमली जामा भी पहनाया जाएगा? क्या मुसलमानों को मरायात दिए जाएंगे, वो तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे जिसके वो हक़दार हैं? क्योंकि एक आपको थोड़ा मैं वक्त लेते हुए ये बताना चाहूँगा कि जब आज़ादी के वक्त भी जो है तहफ़्फ़ुज़ात की बात मुसलमानों के ताल्लुक़ से की जा रही थी, लेकिन वो क्या वजूहात थे एक बड़ी तारीख़ रखती हैं वाजिद भाई, जहाँ पर हमें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात नहीं मिले हैं. उसका नतीजा ये हुआ कि आज कौम जो है समाजी अखराजियत का शिकार हो चुकी है. अब इसे फिर समाजी धारे से जोड़ना है. ये काम सबसे ज़्यादा समाजी जहदकार और सियासी क़ायदीन का है और मुसलमान उलमा का भी है. वो मसाजिद में ऐलान करें कि ये सर्वे को जहाँ तक हो सके कामयाब करें, शफ़ाफ़ करें. किसी भी किस्म का डर और खौफ उनको नहीं होना चाहिए. आपकी कोई जायदाद पर कब्ज़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, आपके बच्चे को तालीम की ज़रूरत है, तो तालीम के हासिल करने के लिए, और आपको नौकरी की ज़रूरत है, नौकरी के लिए आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, वो चीज़ जो है हुकूमत आपको देना चाह रही है. आप उसका अपने घरों में बेहतरीन अंदाज से इस्तकबाल करिए, बिठाइए, भंगे के नीचे सुकून से, हुआ तो चाय भी पिलाकर वो सर्वे को जो है कामयाब करें. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. दोस्तों, यहाँ कहने वाली बात यह है कि ये प्रोग्राम यूँ तो बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें हमारे जहदगार से पूछेंगे कि जनाब आप बताइए कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो चीज़ें हैं एक समाजी जहदगार में आगे आकर लोगों को हिदायत करते हुए उन्हें सर्वे में हिस्सा लेने की हिदायत देने की बात इन्होंने कही है, तो आप इसके बारे में क्या कहें?
भाई भाई मैं बिल्कुल मौलाना से मुतहद रखता हूँ. जब ये सर्वे शुरू हुआ 6 नवंबर को, तो हम लोगों ने मस्जिदों में जाकर खुद मेरी मस्जिद से सदरों में मस्जिद में आधा बयान किया लोगों को कि किस तरह इस सर्वे को रिस्पॉन्ड करना है. लोगों में जो डर की बात आ रही है, डर इसलिए है कि जो पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मरकज़ी गवर्नमेंट थी, CAA जो NRC लगी थी, तो मुसलमानों में सबसे बड़ा डर है कि ये डाटा लेकर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुँचेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे को फिर उसके बाद हम मुसलमानों को घेरेंगे CCA में. तो हम लोगों ने ये बताया कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट से बिल्कुल इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये एक सर्वे स्टेट गवर्नमेंट का है जी. और स्टेट गवर्नमेंट का ज़ात का सर्वे है. ज़ात की बना पे आप में जो पॉपुलेशन आपका जो मुसलमानों का हिस्सा है 12% है. इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने 12% बोलकर बोला था कि हम आपको 12% वो देंगे, तफरात रिजर्वेशन देंगे, तो हुआ नहीं. लेकिन अब जो राहुल गांधी साहब ने कहा कि जिसका जितना हिस्सा है, जितनी तादाद है, उसको उसका हिस्सा मिलेगा जी. तो शायद मुसलमान यहाँ 13% के नज़दीक होंगे. तो हम एज सोशल वर्कर में ये बतलाया कि हर मुसल्ली को ये समझाया कि आप लोगों को जब एलोरे पर आएंगे, जो गवर्नमेंट सर्वे पर आएंगे आप करने, तो आप बिला शुबा, बिना झिझक, बिला डरे आप बराबर पूरे 80 क्वेश्चनों का जवाब दीजिए. जिस बिना पर जो इसमें जो सूबे हैं, जैसा कि सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिकल सर्वे का सर्वे, तो उसमें आगे चल के ये भी मुमकिन है कि आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मिले. जिस तरह SC/ST को है, BC हिंदूज को है, तो आपको भी आप कॉर्पोरेट बन सकते हैं, आप MLA बन सकते हैं. जी. आपको तो ये जी हाँ आपका कहना ये है कि इस सर्वे से तमाम लोगों को जी फायदा पहुंच सकता है हर चीज़ में. वाजिद भाई, मैं आपके सकता. आप लोगों का, आपने हमारे स्टूडियो में आकर बहुत सी मालूमात हमें फराहम की. दोस्तों, सभी डॉक्टर्स और हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये सर्वे हर एक इंसान के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हवा पानी इंसान को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है. अब जब कि ये सर्वे शुरू हो चुका है, तो न हिंदू, मुसलमान, सिख, न ईसाई, ये सभी के लिए इस सर्वे में शामिल होने की ज़रूरत है. वरना आप पछताएंगे कि मैंने इस सर्वे में क्यों हिस्सा नहीं लिया. और ये शेर दोहराएंगे कि वो क्या था जिसे हमने ठुकरा दिया, वो क्या था जिसे हमने ठुकरा दिया, मगर उम्र पर आप मांगते रहे. आप देख रहे थे CFR एपिल TV. मुझे दीजिए इजाज़त. आदाब.